First of all, if product formed has same configuration, means C2H5 this side, CH and this one CH3 instead of X Y. ठीक है, it's a nucleophilic substitution reaction. Hopefully it is clear to you. X has been substituted with Y in this particular reaction. Since the configuration remains same, it is known as retention. Okay, it is retention. Suppose A product, in product A configuration or original configuration of reactant is retained. Second type, if reaction proceeds with inversion of configuration. Inversion of configuration means this CH3 H and Y. This is known as inversion. Okay, it is known as inversion, product B. Okay, another possibility is both products are formed, A and B. Means A भी form हो जाए, B भी form हो जाए. ठीक है, these are three possibilities. सर स्क्रीन चलेगी. मैं कर रहा हूँ. Okay, inversion in which product B is formed. Through which mechanism this is possible? Inversion takes place through SN2. Remember this? In SN2, inversion of configuration takes place. And through which mechanism both A and B are formed? It is through SN1. Okay? In SN1, क्या हो रहा है? Racemization. Or a racemic mixture is obtained. Racemization over here, we got a racemic mixture. Both products are formed in 1:1 ratio. This is possible if the reaction proceeds following SN1 mechanism. Okay, so these are three parts. Racemization. For retention, this we haven't done. नहीं करना, but complete लिख लो please. Fourth point और last point था in stereochemical aspects. Terms देख लो. Through example, visual effect, is it okay? Retention क्या है, inversion क्या है, और racemization क्या है. Especially होएगी कब? Through if the reaction proceeds through SN1 mechanism, then racemization will take place. Okay, and if reaction proceeds following SN2 mechanism, inversion will take place. सर इसी रिटेंशन वाला पार्ट नहीं करना. Retention is not in syllabus. नहीं है, सिर्फ दो mechanism है, SN1 SN2. Okay,
शाश्वत फिर तेरे चैप्टर भी स्टार्ट करवा दिए या फर्स्ट 1-2 लेक्चर्स +1 का रिवाइज करवा रहे हैं? सर मैम ने सिर्फ फर्स्ट लेक्चर में थोड़ा सा नॉमेनक्लेचर करवाया था ओके और बेसिक पिछला, बस उसके बाद सेकंड लेक्चर से मैम ने आगे करवा दिया। मैं मतलब फिर अब नेक्स्ट वीक में तो तेरे मैम आगे चले जाएंगे हमसे। जी सर, चलो गलत गल है। बट सर मैम स्पीड में है काफी, ये है। हाँ पे वही कह रहा हूँ भी नेक्स्ट लेक्चर में मैडम तेरे इससे आगे निकल जाएंगे हमसे तो। जी सर सर, मेरे तो दोनों चैप्टर हो भी गए स्कूल से। हो भी गए फिर पहले स्टार्ट करे बस होने बहुत। सर हाँ, मेरे S7 खत्म हुए तो बाद शुरू हो गए थे वही। ओके 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 फिर तो तेरा क्लियर होना है पूरा। अच्छी गल है, रिवाइज ही हो रहे हैं। सर कुछ समझ नहीं आता स्कूल के, साडी वीडियो ऑफ करके बस मैडम बोल दिया बुक से पढ़ के दिया। हैं? इसलिए कुछ, हाँ दोबारा जी बोल सर, दोबारा बोल। वीडियो ऑफ होंगी है, सिर्फ माइक ऑन होता मैम तो मैम बुक चो पढ़ रहे होंगे बस, अच्छा और कुछ नहीं होता। सिर्फ साडी फॉर्मेलिटीज पूरी हो रही है स्कूल की, क्लासां लग दी है। नहीं 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 वो करवा रहे हैं, ध्यान नाल सुनिया करो। ओके एनीवेज सेकंड रिएक्शन करनी है मुझे। फर्स्ट रिएक्शन मैं रिपीट कर रहा हूँ, मेन टॉपिक क्या है चेक करने, अपने नोट्स मैच करो। वी आर डूइंग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो अल्केन्स। ठीक है, फर्स्ट रिएक्शन जो लास्ट 2 लेक्चर्स लगाए हैं दैट वाज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। वही था ना, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ओके, in nucleophilic substitution we have studied various examples followed by 2 mechanisms S1 SN1 and SN2. Okay, uh, now the second chemical reaction of haloalkane is elimination. Yeah, elimination सर ऊपर कर reactions. दो एक बार। हाँ जी एक मिनट हो जाए। Second reactions are elimination reactions. मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ टाइम देना है, ठीक है। इस वाले पे कंसंट्रेट करो, पहले ये देख लो फिर दिखा रहे हैं। इन एलिमिनेशन रिएक्शंस haloalkanes with beta hydrogen atom is heated with alcoholic solution of KOH। ठीक है, बस यहीं तक। ठीक है, let me have a haloalkane, this CH3 CH2 CH2 Br। Okay, this haloalkane is treated with alcoholic KOH। Okay, now read that line second time carefully. Haloalkane with beta hydrogen. Now what is beta hydrogen? Student, the carbon atom to which halogen is attached is known as alpha carbon। ठीक है, you may write this thing separately, छोटे छोटे नोट्स बनाते रहना। The carbon atom to which halogen is attached is alpha hydrogen. The next carbon is known as beta carbon। Okay, and the hydrogen atoms attached with this beta carbon are known as beta hydrogens। Okay, after that there is a elimination of ਸਰ हाँ जी ਸਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੀਟਾ ਦੇ ਨਾਲ H2 ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਹੈ ਨਾ ਸਰ ਬੀਟਾ ਹਾਈਡਰੋਜਨ। हाँ जी, H2 नहीं, सिंगल HH, 2 हाइड्रोजन्स हैं। ठीक है, देयर इज एलिमिनेशन ऑफ, कंटिन्यू करो, देयर इज अ एलिमिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम बीटा कार्बन। रुक जो यहीं पे। ठीक है, एलिमिनेशन ऑफ, मैं हाईलाइट कर रहा हूं, हाइड्रोजन एटम। ठीक है, सो एलिमिनेट करो हाइड्रोजन एटम को फ्रॉम बीटा CH3, क्या बन जाएगा बच्चे,
इट इज CH। देखो बिल्कुल छोटे बच्चों से मैं वर्ड टू वर्ड करवा रहा हूँ, सो मैच करो, स्पीड भी साथ साथ, और बोलो, पूछो। CH3 CH यहाँ तक ओके है, फ्रॉम बीटा कार्बन एंड हेलोजन एटम फ्रॉम द अल्फा कार्बन। एलिमिनेशन मतलब रिमूव करना हाइड्रोजन को। एक हाइड्रोजन एटम कहाँ से रिमूव होगा? फ्रॉम बीटा कार्बन, ठीक है, एंड वन हेलोजन फ्रॉम अल्फा कार्बन, दिस एंड दिस हाइड्रोजन, वन हाइड्रोजन, ठीक है। कंटिन्यू विद प्रोडक्ट। क्या बचेगा बच्चे? ओनली CH2। इज द वैलेंसी कंप्लीट? नो, डबल बॉन्ड फॉर्म होगा, ठीक है। एज अ रिजल्ट an alkene is formed as a product, ठीक है। बाकी प्रोडक्ट we can easily judge। एक बनेगा KBr, another is H2O, okay। there is a elimination of hydrogen from beta carbon and halogen from alpha carbon, okay। you can try one example। Consider this CH2 CH2 Cl plus alcoholic KOH, okay। First identify the alpha and beta positions and try to write the product, ठीक है। जो मैंने रिएक्टेंट लिखा है उसे देख के कंफ्यूज नहीं होना, वो मेरा काम है कंफ्यूज करना। जस्ट जो वर्डिंग लिखी है या जैसे एग्जांपल दी है उस पे फोकस करो, उस पे फोकस करके क्या हो रहा है सॉल्व, वहां पे देखो। अगर ये एग्जांपल हो गया फिर नेक्स्ट वाला भी करना। दिस इज एग्जांपल 1, एग्जांपल 2, एग्जांपल 3। CH3 CH2 Br plus alcoholic KOH। बोलो प्रोडक्ट। अनूप, second question and the answer is सर कर रहे हैं हाले। नेक्स्ट वन अनूप तो बाद अर्श। अर्शदीप है माइक? नो, नहीं होया। नेक्स्ट संचित, जस्ट ऊपर रीड करना है बच्चे, वर्ड टू वर्ड एज इट इज रिमूव कर दो। उदय, सर मैं बोलूं? हाँ मैं दसा सर सर बोला मैं। हाँ, एक मिनट पहले मैंने उसको पूछ लेना जो मैं नाम लिया, फिर मैं नेक्स्ट आ रहा है थोड़े से। उदय, हाँ जी बोलो। हाँ जी सर, पहला सर साइक्लोहेक्सेन। नहीं, फर्स्ट आइडेंटिफाई अल्फा एंड बीटा पोजीशन। अल्फा सर जो CH2 है दोनों ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦਾ This ਬੌਂਡ one? Cl ਨਾਲ ਵੀ ਹੈ। यस सर यही वाला। ठीक है, नेक्स्ट वन इज बीटा, ओके। हाँ जी, एंड Yes, प्रोडक्ट इज फिर साइक्लोहेक्सेन, एज इट इज, ओके। फिर CH लगाओ सर, CH, फिर CH2 गुड, डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, दिस इज ठीक है। सो जस्ट यस सर। फोकस ऑन द वर्डिंग जो ऊपर लिखी है, ठीक है। यू कैन इजीली सॉल्व द रिएक्शन। रिएक्टेंट ना देखो क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नॉर्मल, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ जी अमरीक। सर CH2
CH2 double bond CH2 double bond CH2 plus KBr plus KBr. Okay, plus H2O sir. plus H2, very good, plus H2, ठीक है. Okay, this is the third reaction. I think examples बहुत हैं. Next देखो, next point is if there is possibility, there is possibility of formation of two or more, या simply लिखा formation of more than one alkene, more than one alkene, okay, then what to do, फिर क्या करें, then what to do means how to select which alkene will be the major product. इस केस में क्या करें, यहाँ पे दो अल्कीन फॉर्म हुए या दो से ज्यादा अल्कीन फॉर्म हो सकें. ठीक है, वी हैव अ सॉल्यूशन. देखो, then we have to think like this. In dehydrohalogenation reaction, this reaction, elimination reaction, is also known as dehydrohalogenation. मतलब to eliminate hydrogen and halogen. The preferred alkene is that which has greater number of alkyl groups attached to the doubly bonded carbon atom. ठीक है? This statement is known as Set-Zepf rule. Okay, it is known as Set-Zepf rule. It is known as Set-Zepf rule. Pronounce it as Set-Zepf. S से start करना. It is Set-Zepf rule. Okay, it states that in dehydrohalogenation reaction, the preferred product is that alkene which has greater number of alkyl groups attached to the doubly bonded carbon atoms. Example देखो, प्रूव करते हैं कैसे. 2-bromopentane. 2-bromopentane is CH3, CH2, CH2, CHBr, CH3. Can I write like this? H. जस्ट ओपन करके लिखा है बच्चे हाइड्रोजन को, ताकि थोड़ा समझने में इजी हो. दिस इज 2-bromopentane. Now when this 2-bromopentane is treated with alcoholic solution of KOH, this 2-bromopentane on treatment with alcoholic KOH, two products are possible. See, on treatment with alcoholic KOH, select the alpha and beta positions. This is alpha, this is beta. ठीक है, the carbon next to alpha carbon. दूसरी साइड देख रहे हैं,
This is beta dash. Okay, two possibilities are there. One, if you remove this hydrogen, this first way. Okay, second, if you remove this hydrogen, product देखो. First case, if we remove this, यहाँ से हाइड्रोजन फ्रॉम बीटा एंड हैलोजन फ्रॉम अल्फा, क्या प्रोडक्ट बनेगा? देखो मन में बोलो, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3. अग्री? यही होगा प्रोडक्ट. ठीक है. बट दूसरा केस, अगर सेकेंड ऑप्शन पे जाओगे, मीन्स इफ यू रिमूव hydrogen from beta dash this way, and bromine from alpha position, now the product is CH3 CH2 CH2 CH double bond CH. check कर लो. These two products are possible. Okay, but question is whether product 1 is a major product or product 2 is a major product. How to predict? मैं बोल रहा हूँ, चलो मैंने लिख दिया फर्स्ट वन इज मेजर, दो प्रोडक्ट बन गए. सेकेंड वन इज माइनर, बट कैसे? हाउ? फर्स्ट है जो प्रोडक्ट, हाउ इट इज अ मेजर प्रोडक्ट, सेकेंड में क्या प्रॉब्लम है? आंसर देखो, वाई फर्स्ट वन इज अ मेजर प्रोडक्ट. रीड दैट रूल. greater number of alkyl group. हाँ वो ठीक है, बट कैन यू आइडेंटिफाई ग्रेटर नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप? पता है ग्रेटर नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप्स? एक बार देखो, फर्स्ट देखो, मैं फर्स्ट का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूँ. स्टार्ट विद कार्बन बेयरिंग द डबल बॉन्ड, सिर्फ वही देखना है जहाँ पे डबल बॉन्ड है. ठीक है. ऑन राइट हैंड साइड कार्बन के साथ क्या लगा है बच्चे? देयर इज वन हाइड्रोजन एंड वन CH3 ग्रुप. अग्री? एंड द कार्बन एटम विच इज ऑन left side of the double bond, again it has a one hydrogen and one CH2 CH3 group. ठीक है. How many alkyl groups are there? There are two alkyl groups. इन्होंने बोलते हैं बच्चे alkyl group. This is ethyl, this is methyl. Ethyl, methyl, propyl. How many alkyl groups are there? There are two alkyl groups. But in second case, in second product, again start with carbon carbon double bond. Okay, there must be CH2. सेकंड H2 होगा सर. हाँ CH2 करता. There are two hydrogens. On left hand side there is one hydrogen and one CH2 CH2 CH3. Agree? How many alkyl groups are there? There is only one One. alkyl group. ठीक है. There is only one. मैं लिखा only one alkyl group. ठीक है. So obviously the preferred product is this one. Okay, it is the preferred product.
Okay, it is the preferred product. So elimination reaction along with the nucleophilic substitution reaction important है. We will use to maximum in conversions दोनों reaction में. And in elimination reaction, without knowing this Sets-F rule, conversions possible means जो questions है possible नहीं होंगे. So there is an example. If you have any doubt regarding elimination reaction or Sets-F rule, you can ask. Check करो. I think मैंने word to word try करा है explain करने की. What is elimination reaction and what is Sets-F rule? Okay? बच्चे wording देख के reaction read करो. वो check कर पा रहे हो? ओके अच्छा हाँ आर्यन Sets-F रूल क्या है? Sets-F रूल आई एम कंसिडरिंग दैट elimination reaction is clear to you. In Sets-F rule, for haloalkane, okay, where the possibility of formation of more than one alkene, ठीक है, वहां पे आएगा ये रोल में. Sets-F rule कह रहा है अगर दो अल्कीन बन रही हैं then that alkene is a preferred product, ठीक है, which is more substituted. एक एग्जांपल देखो, NCERT एग्जांपल है ये. एग्जांपल is on dehydrohalogenation, this 2-bromopentane forms two products. स्क्रीन पे होंगे but2ene and but1ene. okay, स्ट्रक्चर ओपन करके लिखे. In but2ene there are two alkyl groups. दिख रहे हैं? These are two alkyl groups attached with to the carbon-carbon double bond system. But in but1ene there is only one alkyl group. Okay, so which one is more substituted? First one is more substituted alkene, and therefore it is formed as a major product. Okay. नोट कर लो. Okay. ठीक है. This second reaction the elimination reaction. Third chemical property or third type of chemical reactions of haloalkanes are reactions with metals. Okay, reactions with metals. A part है preparation of, इसमें भी A part कर लो, preparation of Grignard reagent. ये नाम बार बार सुनाऊंगा हर चैप्टर में. Preparation of Grignard's reagent. Grignard reagent is RMgX. जैसे लिखा है उसी सेंस में उसका नाम ट्राई करो बोलना. RMgX Grignard reagent क्या होएगा? नाम देखो इसका पूरे Grignard reagent का. Grignard reagent is R क्या है? Alkyl. Mg is
magnesium, Br is X is halide. Okay, so what is Grignard reagent? Grignard reagent is alkyl magnesium halide. Okay, it is alkyl magnesium halide. Okay, it is one kind of organometallic compound. Now what are organometallic compound? ये coordination compound में भी term आई थी, remember this? Organometallic compounds are those which contains carbon metal bond. Highlight this term. ठीक है, those compounds which contain carbon metal bond. Those compounds are known as organometallic compound. ठीक है, and Grignard reagent is one of the organometallic compound. Okay, because it contains carbon and magnesium. Magnesium is metal. Carbon and magnesium bond as. Okay, therefore it is a organometallic compound. Okay, so back to our topic. Topic is reaction of alkyl halides with metals. So reaction बड़ी simple है. It's just RX, any alkyl halide plus magnesium. क्या बन जाएगा? It simply give R Mg X. Okay, बस एक छोटे से precaution है इसमें. We use dry ether for this. Okay, 100% moisture free conditions are maintained. ठीक है, moisture नहीं आना चाहिए for the preparation of dry ether. Dry ether में moisture आया तो क्या होएगा? It will form some different product. We will discuss later. फिलहाल इसे लिखो RX क्या है? RX is alkyl halide. ठीक है, this is Grignard reagent. Grignard reagent. Simple reaction है. एक एग्जांपल भी देख लो. Most common Grignard reagent लिख रहा हूँ. It is CH3 CH2 Br plus magnesium. Dry conditions. Product is CH3 CH2 Mg Br. ठीक है, CH3 CH2 Mg Br क्या बना है? It is इथाइल, जैसे ऊपर नाम लिखाया था अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड. ट्राई करो नाम, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड. ठीक है, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड is formed. Okay, write down the preparation method for noted.
अब देखो मैं बार बार फोकस क्यों कर रहा था, ड्राई कंडीशन ड्राई कंडीशन ड्राई कंडीशन, इसका रीजन नीचे है, क्वेश्चन की फॉर्म में करेंगे। राइट डाउन अ क्वेश्चन, why it is necessary to avoid, why it is necessary to avoid even traces of moisture from the Grignard reagent, क्या हो जाएगा? आंसर लिखो। Answer is Grignard reagents are very reactive species. Okay, these species, these substances react with even traces of moisture. ठीक है, मीन्स वाटर के साथ और अल्कोहल के साथ और अमीन्स के साथ, जहां से भी प्रोटॉन मिले, H पॉजिटिव मिले, these will extract proton from these species and get converted into corresponding hydrocarbon. देखो क्या होएगा, we have RMGX, suppose we prepared RMGX, ठीक है, but when it reacts with water, अगर कहीं से वाटर मिल गया, प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? दिस इज R negative, Mg positive, delta H positive, OH negative. You can guess the reaction. It will form alkane, RH, plus second part MgOH X. That is why we avoid moisture. Otherwise ये प्रॉब्लम हो जाएगी, अल्केन फॉर्म हो जाएगी। बनाना है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, बन जाएगी अल्केन। सपोज बनाना तो है हमने C2H5 MgBr, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ऊपर वाली रिएक्शन करके बना भी लिया, बट अगर कहीं से प्रोटॉन सोर्स मिल गया, मतलब मॉइस्चर या अल्कोहल मिल गया, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा ये? इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू C2H6 plus MgOH-Br. Okay, it will get converted into ethane. So moisture is avoided, even traces of moisture are avoided in preparation of Grignard reagent. Okay, this is the first reaction or part A of alkyl halides with metals. B देख के खुश हो जाओ, करी हुई है ना? Woods reaction पर्सनल फेवरेट होएगी बहुत बच्चों की लास्ट ईयर भी। चलो पहले ऊपर वाला नोट कर लो एक बार। सर थोड़ा सा ऊपर करना। ठीक है, यस सर। हो गया।
हो गया होगा। देखो इसमें इन वुड्स रिएक्शन, इन वुड्स रिएक्शन अल्काइल हैलाइड्स react with sodium in a dry ether to give hydrocarbons containing double the number of carbon atoms as present in the alkyl halide. This we have done in class +1. Okay, उन्होंने लिखा है बट कोई प्रॉब्लम नहीं, दोबारा करेंगे. Two molecules of alkyl halide reacts with sodium in dry ether as solvent. Product is hydrocarbon which contains double the number of carbon as present in original alkyl halide. इसी की एग्जांपल देखो, सेम लेटर कॉपी पेस्ट. एग्जांपल इज consider this CH3Cl 2 times plus 2 sodium in dry ether product is CH3 2 RR हो गया ना, प्लस 2 NaCl. सिंपल. स्टार्टिंग देखो, इन स्टार्टिंग अल्काइल हैलाइड हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर देयर? 1. बट जो प्रोडक्ट बना इथेन, हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर देयर? 2. दिस इज वुड्स रिएक्शन. एक और चीज देखते हैं इसकी, और एग्जांपल थोड़ी सेम एग्जांपल डिफरेंट तरीके से. अगर ऐसे समझ आ गया बेस्ट है, ऐसे ही करना है. फिर भी नहीं समझ आया, मैं डिफरेंट तरीके से समझा रहा हूँ सेम एग्जांपल को. और कंसिडर दिस लाइक CH3Cl plus 2 sodium atoms plus Cl CH3 like this in dry ether okay. In this reaction product is something like this. ऐसे अल्काइल ग्रुप को छोड़ के बाकी सब ऐड कर दो. अल्काइल ग्रुप से लग रह गए, ऐड करो जो भी अल्काइल ग्रुप है. CH3 प्लस 2 NaCl. दोनों में से कोई भी तरीका यूज कर लेना. ओके, अगर एग्जांपल ये समझ आ गई है, सेकंड वाली करके देखो. CH3 CH2 CHBr CH3. अब मैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखा रहा हूँ भी एग्जाम में कैसा लिखा होएगा. दिस इज द सेकंड इक्वेशन. कुछ ऐसा लिखा होएगा, या ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे ड्राई ईथर लिख देंगे. वैसे मैक्सिमम टाइम नहीं लिखाएगा. ये है कंप्लीट द फॉलोइंग. ठीक है, टेक योर टाइम. मैं पूछ रहा हूँ प्रोडक्ट क्या है, सिर्फ इतना लिखा होगा. आफ्टर फ्यू सेकेंड्स आई विल गिव यू द हिंट. नहीं होएगा फिर मैं खुद कर रहा हूँ.
हाँ जी, एनीवन? ब्रह्मलीन, आया कुछ आंसर? सर कर रही हैं आगे। बाकी शाश्वत, विशाल, ओम, मनवीर, एनी कोई आंसर? नहीं? सर हाँ जी, सर 3,4 हाँ जी, डाइमिथाइल डाइमिथाइल, हेक्सेन। गुड, ठीक है, ये, ठीक है, 3,4 डाइमिथाइल हेक्सेन, आंसर ठीक है जरा। ओके, अच्छा बाकी देख लो बच्चे, करना कैसे है। फर्स्ट थिंग, बाय सीइंग सोडियम एंड ड्राई ईथर आपको आइडिया लग जाएगा दैट इट्स अ वुड्स रिएक्शन, ठीक है, एंड इफ इट इज अ वुड्स रिएक्शन तो अपने आप 2 लगा दो। ओके, तो लगा देना है। और may I write like this? Same thing, I'll try to write like this, CH3 CH2 CH। इस पूरी क्वेश्चन की परसेप्शन ही बदल जाएगी। अब देखो, स्टिल सेम थिंग, मैंने कोई डिफरेंट चीज तो नहीं लिखी, इट्स स्टिल 2 ब्रोमो ब्यूटेन 2 है, सो ऊपर वाले मॉलिक्यूल को जस्ट रिप्लेस करा है ताकि थोड़ी सी लुक चेंज हो जाए सी, बट इससे अपना आंसर बहुत इजीली आ जाएगा, ड्राई ईथर। अब देखो, जब ऐसे लिखोगे, फर्स्ट जो अल्काइल ग्रुप है, हाईलाइट कर रहा हूं मैं अल्काइल ग्रुप को अलग से, दिस ग्रुप, ठीक है, इसे लिखो एज इट इज, CH3, हेलोजन को छोड़ दो, CH2 CH CH3 लिख दिया। वंस डन विद राइटिंग अल्काइल ग्रुप, ठीक है, दूसरा अल्काइल ग्रुप लिखना है दूसरी बार, इसी की रिफ्लेक्शन बनाओ, मतलब इसी को उल्टा करके लिखो, वो क्या हो जाएगा, CH CH3 CH2 CH3, this is our answer, plus 2 NaBr, 2,3 dimethyl hexane, it is 2,3 dimethyl हेक्सेन। सो एग्जाम में ये नहीं होगा, अभी आपको वुड्स रिएक्शन नहीं आएगी, बस पता कर लेना भी वुड्स रिएक्शन पूछी है, वो फाइंड करना सबसे डिफिकल्ट टास्क है। एक और ट्राई करो, थर्ड, इस बार थोड़ी फटाफट। प्लस सोडियम, एंड द प्रोडक्ट इज, फटाफट करना। आर ग्रुप्स बड़े देख के कंफ्यूज नहीं होना, ऑलवेज look for generalizations, general reaction।
ओके, इनको समझ आया, आई होप हो गया होगा आंसर। दिस इज 2, यहाँ पे 2 लगा देना है। ड्राई ईथर गिवन है तब भी ठीक है, नहीं भी ओके है। फर्स्ट राइट द आर ग्रुप एज इट इज, CH2 CH2 CH के साथ है एक CH3, फिर इसी ग्रुप को उल्टा करके लगाओ, रिफ्लेक्शन इसकी CH3 CH2 CH2 और CH2 के साथ है साइक्लोहेक्साइल रिंग। दिस इज द प्रोडक्ट। कार्बन एटम अभी भी चेक कर लो, किसी भी प्रोडक्ट में रिएक्टेंट से डबल है। दिस इज वुड्स रिएक्शन। ओके, इसे नोट करके ना, एग्जांपल्स नोट करके एक बार एनसीईआरटी निकाल लो। एनसीईआरटी ओपन कर रहा हूँ, एनसीईआरटी अभी। सर लास्ट में 2 NaCl नहीं आएगा? हाँ, वो दैट इज इनऑर्गेनिक पार्ट, वो उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, लिखना है लिखो, नहीं लिखना तब भी चलेगा। ऑर्गेनिक कंपोनेंट ओनली। हो गया नोट? एनसीईआरटी खोलो। देखो 10.1 इन टेक्स्ट क्वेश्चन 10.1 2 3 4 5 तो चलो यहीं पे कर लिए थे, टेस्ट भी हो गया। चेक करते रहना कोई मिस तो नहीं हुआ क्वेश्चन, एक भी नहीं छोड़ना। अगर मेरे से भी छूट गया ना गलती से कोई क्वेश्चन, सो मैं वो भी सेम ही चीज बोलूंगा, वही क्वेश्चन पेपर में आएगा। मेरे पे भी यकीन नहीं करना, क्वेश्चन करने हैं सारे। अगर कोई स्किप हो रहा है तो बताओ, ठीक है? खुद ट्राई करो, या मैं होमवर्क दूंगा या मैं करवाऊंगा, पर करने सारे हैं, सिंगल सिंगल क्वेश्चन। 10.1 10.2 वी हैव डन, क्लास में ही किया था। अच्छा, ये तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का है, ठीक है। दिस क्वेश्चन एग्जांपल है, चेक करना, नोट्स करा होगा। कीता है सर ये वाला। हाँ हाँ, I know this chirality, last time we have done this question. Yeah, there has to be some exercise before this. What's reaction? Reaction with metals हो गया, गई reaction, electrophilic substitution reaction आ गई। ओके, ठीक है, नोट करो। इन टेक्स्ट क्वेश्चन होमवर्क नोट करो। इन टेक्स्ट क्वेश्चन 10.7 10.7 this सर ये अभी करना है? होमवर्क कह रहे हैं यार। कि 10.7 10.8 10.9 10.7 10.8 10.9 इन टेक्स्ट क्वेश्चंस। बुक खोल लो, टिक करो।
फ्रॉम एक्सरसाइज ऑल्सो काफ़ी क्वेश्चंस तो हो गए होंगे, बट फिर भी कुछ क्वेश्चंस जो आज के लेक्चर में हो जाने चाहिए। 10.4 अगर पहले नहीं करा, 10.4, 10.5 तो जो टेस्ट में भी आया था हाँ 10.6 हो जाएगा। 10.7 न्यू है जो 10.7, 10.8 हमने करा है, अगेन 10.9, 10.10 आज ही करा है एलिमिनेशन रिएक्शन के बेसिस पे। 10.11 इज कन्वर्जन, मैं इसे बोल रहा हूँ ट्राई। हो गया बेस्ट है, नहीं हो गया मैं करवाऊंगा पूरा। 10.11 10.12 पार्ट 2, अच्छा डायपोल मोमेंट ही है, फर्स्ट भी कर लो। नॉट इन सिलेबस 10.14 10.14 नोटबुक है ना किसी के पास? बाद में नहीं कहना भी कौन सा होमवर्क दिया था, जैसे ही क्लास ओवर होती है फिर साथ ही वो फोन आ जाते हैं, सब नहीं हुआ, नोट नहीं करा। बुक है, बेस्ट है, नहीं है नोट डाउन नंबर्स। ये एक्सरसाइज की बात हो रही है अभी।